સંસ્થાઓનું મૌન। આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ નિમિત્તે આંબેડકર સમાજ પાર્ટી ગુજરાત રાજ્ય અને ફોરમ અગેન્સ્ટ મોબ લિન્ચિંગ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સના સંયુક્ત નેજા હેઠળ હોટલ રાજવંશ કાલુપુર ખાતે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું આયોજન આંબેડકર સમાજ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે કર્યું હતું અને સંબોધન કર્યું હતું। ભાઈ તેજસિંહ, ફોરમ અગેન્સ્ટ મોબ લિન્ચિંગ અને અન્યાયના સ્થાપક આશ્રયદાતા પત્રકાર ભાઈઓને સંબોધતા ભાઈ તેજસિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં જેટલા માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું છે તેટલું કદાચ વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય નથી। આપણા આ દેશમાં જાતિ અને ધર્મના નામે નિર્દોષ લોકોને દિવસે દિવસે મારી નાખવામાં આવે છે અને ક્યાંય કોઈ સાંભળતું નથી। અહીં શાસનના ત્રણેય એકમો, ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર મૌન છે। દેશમાં રમખાણોના નામે, ટોળાની હિંસાના નામે કે આતંકોના નામે જે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે કે માર્યા જાય છે તે દલિત, આદિવાસી, પછાત કે મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી છે। દેશમાં રમખાણોનો ઇતિહાસ ઘણો જૂનો છે, પરંતુ દેશના ભાગલાના નામે લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી આજ સુધી મુસ્લિમોની સામૂહિક હત્યાનો સિલસિલો અટક્યો નથી। દેશમાં આરએસએસ સમર્થિત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની ત્યારથી આ લડાઈ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, જેને મોબ લિન્ચિંગ કહેવામાં આવે છે। નેશનલ ક્રાઇમ રિપોર્ટ બ્યુરો અનુસાર 2016માં 6,986 લોકો અને 2013માં 9,013 લોકો ટોળાની હિંસાનો ભોગ બન્યા હતા, જેમાં અપરાધીઓ લગભગ હિન્દુ અને હિન્દુત્વ સંગઠનો હતા। 22 જાન્યુઆરી 1999ના રોજ ઓરિસ્સાના મયુરભંજ જિલ્લામાં રક્તપિત્તના દર્દીઓની સેવામાં રોકાયેલા બ્રિટિશ મિશનરી ગ્રેહામ સ્ટેન્સને સંઘના એક સંગઠનના સભ્ય દ્વારા સિંહ દ્વારા 50-60 લોકો દ્વારા આયોજિત ટોળામાં માર મારવામાં આવ્યો અને બાદમાં તેને આગ લગાડી ટોળાની હિંસાનું પ્રથમ કૃત્ય હતું, જેણે વિશ્વમાં આપણા દેશને શરમજનક બનાવ્યું। દેશના સફળ વડાપ્રધાન મોદીજી અને તેમના માસ્ટર માઇન્ડ વઝીર અમિત શાહ સત્તામાં આવ્યા પછી દેશમાં મોબ લિન્ચિંગના મામલાઓનું પૂર આવ્યું। એક રિપોર્ટ અનુસાર મોબ લિન્ચિંગના 82 કેસમાં 43 લોકો માર્યા ગયા અને 145 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા, જેમાંથી લગભગ તમામ દલિત અથવા મુસ્લિમ હતા। 2016માં 4 દલિતોને જીપ સાથે બાંધી ગુજરાતના ઉના જિલ્લામાં 4 કિલોમીટર સુધી મૃત ગાયનું ચામડી કાપવા માટે ખેંચવામાં આવ્યા હતા, પછી માર મારવામાં આવ્યો અને ખરાબ રીતે ઘાયલ થયા હતા। આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે મોબ લિન્ચિંગની મોટાભાગની ઘટનાઓ ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં જ બની છે। આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે મોબ લિન્ચિંગની ઘટનાઓ હિન્દુત્વવાદીની સંગઠનોના કહેવાતા ગૌરક્ષકો દ્વારા આરએસએસના એજન્ડામાં સરકારના રક્ષણ હેઠળ ગાય અથવા ગૌમાંસના બહાને કરવામાં આવી। 2020ના દિલ્હી રમખાણોનો ઉલ્લેખ કરતા ભાઈ તેજસિંહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને દિલ્હી રમખાણોના માસ્ટર માઇન્ડ કહેવામાં આવ્યા, જે ખૂબ જ અફસોસની વાત છે। આનાથી વધુ શરમજનક વાત શું હશે કે દેશના પ્રખ્યાત વડાપ્રધાન મોદીને અમેરિકામાં પ્રવેશવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો। ભાઈ તેજસિંહે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં મોબ લિન્ચિંગ જેવા જઘન્ય ગુના પર દેશની ધારામંડળ, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર મૌન છે, કારણ કે અહીં સરકાર અને સરકારી તંત્રમાં હિન્દુ માઇક્રો માઇનોરિટીનું વર્ચસ્વ છે। પરંતુ ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશન એમ્નેસ્ટી ઇન્ટરનેશનલ જે વિશ્વમાં શાંતિ જાળવવા તત્પર ગણાય છે, કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓનું મૌન ચિંતાજનક છે। દેશના પ્રચાર માધ્યમો તે ઉચ્ચ જાતિના હિન્દુઓના નિયંત્રણમાં છે અને 2014થી દેશનું લગભગ આખું મીડિયા પ્રખ્યાત વડાપ્રધાન મોદી માટે કામ કરી રહ્યું છે। પત્રકાર ભાઈઓ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં રમખાણો, ટોળાની હિંસા જેવા જઘન્ય ગુનાઓ કેવી રીતે બંધ થવા જોઈએ, જેના જવાબમાં ભાઈ તેજસિંહે કહ્યું કે રમખાણો, મોબ લિન્ચિંગ વગેરે ઘટનાઓ દેશના ઉચ્ચ જાતિના હિન્દુઓ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, તે પણ તેમની સરકારોના કારણે આપવામાં આવ્યું છે। જો ઉચ્ચ જ્ઞાતિના હિન્દુઓને સત્તાના ગલિયારામાંથી બહાર ફેંકી દેવામાં આવે તો આજ બિનજરૂરી રક્તપાત અટકી શકે અને આ માટે ભાઈ તેજસિંહે મૂળ દલિતો, આદિવાસીઓ, પછાત, મુસ્લિમો, બૌદ્ધો, શીખો, ખ્રિસ્તીઓને અપીલ કરી કે તેઓ ઉચ્ચ જાતિના હિન્દુઓ એટલે કે બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયોને, વૈશ્યોને મત ના આપે। ભાઈ તેજસિંહે સ્પષ્ટપણે દેશમાં શરિયા કાયદાનો અમલ કરવો તે સમયની જરૂરિયાત છે। શરિયતના કાયદાના અમલથી ચોરી, લૂંટ, જુલમ, અતિરેક અને દાદાગીરી પર અંકુશ આવશે અને અન્યાય, અત્યાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, હત્યા, બળાત્કાર જેવા જઘન્ય ગુનાઓ બંધ થશે। પરંતુ શરિયતના કાયદાનો અમલ કરવા માટે ન્યાયી અને પ્રામાણિક સરકાર છે અને સરકારી તંત્ર અને ન્યાયતંત્ર અને પોલીસને બ્રાહ્મણવાદીઓથી દૂર રાખવા પડશે। જ્ઞાતિવાદી અને સાંપ્રદાયિક માનસિકતા ધરાવતા લોકોને શાસનથી દૂર રાખવા પડશે। ભાઈ તેજસિંહે છેલ્લે કહ્યું હતું કે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવનારા દલિતોએ બાબા સાહેબ ડોક્ટર આંબેડકર દ્વારા સુનિશ્ચિત કરેલ 22 પ્રજ્ઞા તેમજ 23મી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ। હું કોઈ પણ સવર્ણ હિન્દુ એટલે કે બ્રાહ્મણને કોઈ પણ ચૂંટણીમાં કોઈ પણ ભોગે મત આપી ક્ષત્રિય અને વૈશ્યોને મત આપશો નહીં અને હું મારા સમાજને પણ આવું કરવા પ્રેરિત કરીશ। પત્રકાર પરિષદમાં રાષ્ટ્રીય સચિવ ભાઈ
રફીઉદ્દીન અંસારી, વસરામ પરમાર, ધીરજ ચાવડા, રાજુ સોલંકી, ઓપરેશન ભાઈ હાફિઝ, દિલીપભાઈ દુલેરા વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आए दिन होती है, क्या है आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें जीने की, इस मुल्क में जीने की हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी बहाने से, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उसको कानून सजा दे, कानून पुलिस के हवाले कर सकते हैं। वहाँ पर इकट्ठा होकर उस आदमी को कानून के हवाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उनको पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको कोई, उस फैमिली को कोई कंपनसेट नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। मैंने झारखंड का भी विजिट किया, मैंने बिहार का भी विजिट किया, उसके बाद में राजस्थान, अभी मैं आपके यहाँ हूँ, तो उत्तर प्रदेश को भी मैं देखा है। पूरे देश में, यानी कर्नाटका से लेके केरल से लेके, केरल में तो बहुत कम है, एक आधी वारदात है, लेकिन कर्नाटका हो गया, दूसरा जो स्टेट हो गए, और जहाँ तक जो बीजेपी के गवर्नर स्टेट है, बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा हो गए। 2014 देखिए, पहले 1999 की एक वारदात थी, जो स्टेल्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको जला के मार दिया गया था उड़ीसा के अंदर। पहली घटना थी मॉब लिंचिंग की, जो 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर, जिसमें दारा सिंह चौहान को फांसी मिली थी, RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, लेकिन 2014 के बाद में जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, तो उसके बाद तो मॉब लिंचिंग की बाढ़ आ गई, और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम को और दलित को टारगेट। आपको नाम है, देखिए कितनी बड़ी वारदात हुई कि 4 लड़कों को जीप से खींचकर वहाँ 4 किलोमीटर तक उनको ले गया, बाकी लाठी डंडों से मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। और 2002 में, जिन्हें आप दंगे कहते हैं, और भी लोग जो दंगा कहते हैं, दंगा तो जब होता है जब दो कौमें आमने सामने होकर लड़ती हैं। हाँ, 2 कौमें आमने सामने नहीं आई, कुछ लोग मोब इकट्ठा होके मुसलमानों को घर में से निकाल के मारा, ऐसे मारा, जहाँ भी जैसे मिलाकर। ये सबसे बड़ा महा मॉब लिंचिंग का पर्व मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ मना, जिसको 2002 का अब राइट्स कहते हैं। ये अजीब तमाशा है। यहाँ मानवाधिकार आयोग है, ये यहाँ पर कार्यपालिका है, जो आपका जो MLA MP है, कोई बोलता नहीं, सबको मुँह सिले हुए हैं, सब पार्टी से बंधे हुए हैं। तो उसके बाद में जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो कुछ करती नहीं है। जुडिशरी उल्टा ही, जो शिकायत करने वाला है उसको बैठाते हैं थाने में, और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यहाँ निष्क्रिय है। और माफ भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसको कहते हैं, मीडिया भी मोदी में हो चुका है इस देश में। सच्चाई सामने नहीं आ रही है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो जिस तरह से जो 14 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं, EVM एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM के जरिए बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, सत्ता में आ रही है। इसके बाकायदा प्रूफ है हम लोगों के पास में। उसको लेके हम अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम जाके मिलेंगे। तो जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये जो जहाँ हमारे यहाँ भारत का मानवाधिकार होगा, उसकी एक ब्रांच है, और उसको वहीं से पेमेंट मिलता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इनको पैसा मिलता है। जो जितने वहाँ लोग हैं उसमें दफ्तरों में काम करते हैं, बड़े मेंबर हैं, उनको तनख्वाह वहीं से मिलती है। लेकिन काम किसका करते हैं, वो भी मौन है। सुप्रीम कोर्ट मौन, जनता जब मारी जा रही है, किसी को किसी का जिंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये कानून, इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी व्यक्ति की कैसे भी जान ले लें। क्रिमिनल को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मारने का किसी को राइट नहीं है। और आज तक किसी को सजा नहीं मिली, एक आध केस को छोड़ दी। और टारगेटेड कम्युनिटी दलित और मुस्लिम ही है। आप ये तो बहुत बड़े से, ये आपका गुजरात है, डेट इज हाईली इन्फेस्टेड, मॉब लिंचिंग का है, तमाम घटनाएं होती हैं। यहाँ देखिए, 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। क्या ये जो मानवाधिकार आयोग सो रहे हैं? और 16 दिन, मतलब 6 दिन के अंदर एक दलित को मार दिया जाता है, यहाँ पे जान से मार दिया जाता है। दलित की बात बता रहा हूँ। तो ये क्या, ये रिकॉर्ड वो आंकड़े जो मेरे पास हैं, क्या मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है? इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के पास भी होने चाहिए। अमेनिटी इंटरनेशनल है, ये सारी नेशनल इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए बनी है, वो क्या कर रही है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो क्या सरकार चलिए, भाजपा की सरकार है, उनका वो मकसद है, वो RSS का एजेंडा लागू कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग सोए पड़े हैं। पूरा देश तो भाजपा का नहीं हो गया, पूरा देश तो RSS का नहीं हो गया। किस तरह से मारामारी हुई है, आपने तो खुद आंखों से, पत्रकार बंधु की आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा होगा।
इसका मतलब क्या है? क्या कभी इस मुल्क में अमन चैन कायम हो सकता है? क्या आप गौर करें कि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत में क्या कभी कोई दंगा हुआ हिंदुओं के ऊपर? मैं नहीं समझता कि कोई दंगा हुआ, तो कोई ऐसी कोई बात हुई। ब्रिटिश के टाइम पे भी जो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल लोगों को तो परेशानी हुई, लेकिन आम जनता को ब्रिटिश हुकूमत में भी कोई परेशानी नहीं हुई। और ब्रिटिश ने हमें जीना सिखा दिया। उन्हीं की मेहरबानी है, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे शख्सियत ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान में सबको बराबर का हक दिया। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। कोई भी किसी धर्म को मानना कैसे करा है, ये फंडामेंटल आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ये फंडामेंटल राइट है। हम किसी धर्म को माने, किसी को कुछ करें, लेकिन उस पर भी रोक लगाई जा रही है। संविधान के अगेंस्ट में जाके ये कानून बनाए जा रहे हैं। ये क्या मतलब हो रहा है? हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते। और ये टारगेट जो बहुत बड़ी कमजोरी, मुसलमान कम से कम 20-22% मुसलमान हैं और करीब 28-30% यहाँ दलित है। और ये इतनी बड़ी कम्युनिटी को भी आप टारगेट बना रहे हैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से। ये क्या हो सकता है? तो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है और अमेरिकी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारी संस्थाएं सो रही हैं। तो हमारा आप लोगों के सहयोग से लोगों को जागरूक करना है और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और अमेरिकी इंटरनेशनल जैसी संस्था को भी ये सारा रिकॉर्ड लेके हम वहाँ भी उनको अप्रोच करने वाले हैं कि भाई इंडिया में ये कत्लेआम कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, खास जो कम्युनिटी है, खास जो व्यक्ति हैं, वही क्यों टारगेट हैं। आज बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। ऐसी घटनाओं को बार देखिए, जाति और धर्म बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति के बगैर पूछे कोई न पानी पीता न पिलाया जाता है। आज भी बात जो कहते हैं छुआछूत गवर्नमेंट ने माना है। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 341 पे जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि मुसलमानों ने जब वहाँ गए आर्टिकल 341 के खिलाफ, तो वहाँ कोर्ट ने जब जवाब मांगा सरकार से, तो सरकार ने लिख के दिया कि भाई हिंदुओं में छुआछूत है और मुसलमानों में छुआछूत नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम दलितों को वो अधिकार नहीं दिए जा सकते, रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अभी इसका मतलब सरकार आज भी मान रही है कि छुआछूत है। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें लिखा हुआ है। तो जो लोग जो दंगे करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वही लोग ह्यूमन राइट कमीशन में बैठे हैं, वही लोग पुलिस में बैठे हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या सत्ता के सहयोग से तो सारा हो रहा है। अभी देखिए, एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली के दंगों में रिपोर्ट आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और जो अमित शाह जी को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी उसमें है, उस रिपोर्ट में। जब होम मिनिस्टर दंगे करवाएगा, चीफ मिनिस्टर दंगे करवाएगा, तो फिर लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप जस्ट इमेजिन। और अमित शाह ये किस कैटेगरी से आते हैं, ये क्यों करवाना चाहते हैं, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए, मुसलमानों को क्यों उठाना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा। कब तक सोते रहेंगे? कब तक हम तो दलित तमाशबीन बने रहेंगे? तो ये तो कभी न कभी तो ये विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जाति और धर्म जो होता है ना, सांप्रदायिकता, दो वजह, सांप्रदायिक माइंड के और जातिवादी माइंड के लोग ही इस तरह की उसको अंजाम दे रहे हैं वारदातों को, और वही लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, पुलिस में बैठे हुए हैं, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी को। कानूनी लड़ाई क्या लड़ सकते हैं मॉब लिंचिंग वाले? साहब, कानून की लड़ाई तो वो भी लड़ी जा रही है, लेकिन कानून में न्याय नहीं मिलता। न्यायपालिका में देखिए, माफ कीजिएगा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था कि ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए उसे न्यायपालिका में नहीं रखा जाना चाहिए। ये बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में ऑर्डर पास किया। आज 99% जज ब्राह्मण है। कॉलेजियम का क्या मतलब है? आप कंपटीशन कराइए, आए ब्राह्मण, हमें कोई दिक्कत नहीं है। IAS IPS बन रहे ब्राह्मण, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को आप कॉलेजियम के माध्यम से भर देंगे तो कैसे न्याय मिलेगा? क्या मिलेगा? कास्टिस्ट माइंड के लोग, जातिवादी माइंड के लोग वहाँ बैठे हैं, वो नहीं देते। और देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन है, अगर आपने ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की तो वो आपकी अर्जी उसी थाने में जाएगी, उसी से रिपोर्ट मांगेंगे जिसने लीपापोती की है। इसलिए न्याय नहीं मिलता है। कानून से क्या करेंगे? ये तो लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हुए और राष्ट्रीय लेवल पे आवाज उठाई आपने इसकी? ना, बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे पास लाखों लोग हैं, हम लोग 78 से काम कर रहे हैं इसमें।
78 से हम लोग इसी मामले पर काम कर रहे हैं। जो मजलूम हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम लोग आगे आके काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं तो मुजीब की माँ भी अब तक रो रही है और अखलाक पहलू पे आप लोग कहीं सामने आए या हम अखलाक पहलू के यहाँ भी गए हैं, मुजीब के यहाँ भी गए हैं, मजलूम अंसारी के यहाँ भी गए हैं, तमाम लोगों के यहाँ जा रहे हैं। उनकी हालत देखिए और बाकायदा हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए ये हालत है। जब वारदात होती है तो तमाम नेता आते हैं, 4 आश्वासन देते हैं, उसके बाद कोई मुल्क नहीं दिखता। वो बेचारे कितने ही उसमें जी रहे हैं, बहुत मुश्किल में। तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और अच्छे लोग हैं जो 4 पैसे खर्च कर सकते हैं, उनसे उनको कंपनसेट कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यह है कि ये मॉब लिंचिंग बंद होनी चाहिए, दलितों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। अत्याचार तो किसी पर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ न्याय है, कानून सबको बराबर कर दिया, तो फिर पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में गैर बराबरी क्यों मांगती है? क्यों जातिवादी मान से हम लोगों को उसी तरह से ट्रीट मिल रहा है जो कभी हजारों साल पहले मिलता रहा है? तो अब तो मतलब यहाँ बराबरी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन भारत हमारा पीछे जा रहा है। भारत में जो वो मानसिकता, गंदी मानसिकता के लोग हैं, आज भी शासन सत्ता में बैठे हुए हैं बाई डिफॉल्ट, नॉट अच्छे कामों की वजह से नहीं। आप देखिए वो यहाँ ये नोटबंदी होती है, कोरोना में किस तरह से लाखों लोग मारे गए, कितने लोग कैसे क्या हो गए, फिर भी सरकार जीत रही है। सरकार वोटों से नहीं जीत रही, सरकार ईवीएम मैनिपुलेशन से जीत रही है। और ये खुलासा हो रहा है। कब तक ये बचेंगे, कब तक क्या बचेंगे? ये सारा लोगों में इस तरह का रोष बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा तो अच्छे को उखाड़ के सत्ता में उखाड़ के फेंक देती है जनता में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया है, तो क्या आप आगे करोगे उसके लिए? सर, अपराधियों को जो छोड़ दिया जाता है और अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको 20-20 साल, 21 साल आपका ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद में आपको बेगुनाह क्या क्या छोड़ा जाएगा, कोई कंपनसेशन नहीं है। अगर वैसे नॉर्मल सजाएं आपका कह दी है, उससे तो कुछ भत्ता मिलता है रोज का, तो वहाँ से जेल से छूटता है तो उसको पैसा मिलता है। जो 20-20 साल ट्रायल के बाद में, 21 साल ट्रायल के बाद में, 10-10 साल, 5-5 साल ट्रायल के बाद में कह देते हैं ये बेगुनाह है। और ऐसे हजारों केसेज हुए हैं। क्या न्यायपालिका की आंखें बंद नहीं? क्या मैं चाहता हूँ कि क्राइम कैसे बंद होगा कि अगर न्यायपालिका निष्पक्ष हो जाए और जिस पुलिस अफसर ने जो चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट अगर झूठी पाई जाती है, उस पुलिस अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हो, इम्प्लीमेंट हो, तो ईमानदारी से काम हो, तो भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेईमानी से होता है, कास्टिस्ट माइंड से होता है, सांप्रदायिकता हमारे दिमाग में भरी हुई है, उससे लोग बैठ के चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा दो, वही काम करते हैं। ओके।